آج بھی 360 میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے امریکی جمہوریت اور خارجہ پالیسی پر اثرات، پشتون معاشرے میں حجرے کی عدم موجودگی کے باعث انتہا پسند نظریات پھیلنے کا خدشہ، اور جانیے گا میانمار میں پان کھانے والوں کی حوصلہ شکنی کیوں کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر مواخذے کی کارروائی میں اپنی جماعت کی اکثریت والے امریکی سینٹ سے بری ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ امریکی تاریخ میں مواخذے کا سامنا کرنے والے تیسرے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے عہدے کے ناجائز استعمال اور اپنے خلاف کانگریس کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات میں بری کر دیا گیا ہے۔ کل ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والے سینٹ میں ہونے والی ایک تاریخی ووٹ میں صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی قراردادوں کے حق میں 48 جبکہ مخالفت میں 52 ووٹ پڑے۔ تقریباً سارے ہی ووٹرز پارٹی وابستگیوں کے مطابق ڈالے گئے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس وقت جمہوریت کو نقصان پہنچایا جب انہوں نے یوکرین کے لیے امریکی امداد کو اپنے سیاسی مخالفت سابق صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات سے مشروط کیا۔ اگرچہ ریپبلکنز کی اکثریت والے امریکی سینٹ سے صدر کو بری کیا جانا یقینی تھا، ریپبلکن سینیٹرز کی صدر کو عہدے سے ہٹائے جانے کی مخالفت کے لیے وجوہات مختلف تھیں۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدر کی اپنی پارٹی کے ایک سینیٹر نے انہیں عہدے سے ہٹائے جانے کے حق میں ووٹ ڈالا۔ صدر کی بریت کے آگے ایک بہت بڑا عیارت کا نشان ہے۔ یہ نشان کہتا ہے کہ انہیں حقائق کی غیر موجودگی میں بری کیا گیا ہے، انہیں ایک منصفانہ ٹرائل کے بغیر بری کیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی بریت بے معنی ہے۔ صدر کو ان کے آفس سے اس بنیاد پر ہٹانا کہ انہوں نے اپنے ان تسلیم شدہ اور آئینی اختیارات کا استعمال کیا جنہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ صدور دونوں استعمال کر چکے ہیں، اس سے ایک انتہائی خطرناک مثال قائم ہو سکتی تھی۔ یہ ہمارے رائے دہی کے حقوق پر، ہماری قومی سلامتی پر اور ہمارے بنیادی اقدار پر ایک کھلا حملہ تھا۔ اپنے آپ کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کے نظام کو کرپٹ کرنا میرے خیال میں اس عہدے کی سب سے تباہ کن خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے مقدمے میں سینٹ نے ان کو بری بھی کر دیا۔ امریکہ کی جمہوریت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن گزشتہ ہفتے بین الاقوامی جریدے اکانومسٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق امریکی جمہوری نظام ناقص ہے۔ ہم نے امریکہ میں انٹرنیشنل افیئرز اور سیاسیات پڑھنے والے پاکستانی نژاد امریکی اسٹوڈنٹ سے صدر ٹرمپ کے مواخذے پر رائے لی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروسیس مکمل ہوگا، نتیجہ چاہے جیسا بھی ہو۔ یہ رہنماؤں کو احتساب کے دائرے میں لانے کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور صحافیوں کے ذریعے ثبوت سامنے لانے چاہیے تھے۔ اب جبکہ رہنما قابل احتساب ہے تو پاکستان میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ نواز شریف اور دوسرے سابقہ حکمرانوں کا احتساب ہو رہا ہے۔ گرڈ لاک گورنمنٹ سسٹم ہے ہمارا ابھی، بیکاز اتنا زیادہ ٹینشن ہے ریپبلکن پارٹی ورسز ڈیموکریٹک پارٹی، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی اس ٹینشن کی وجہ سے کوئی افیکٹو پالیسی بن نہیں سکتی۔ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس وقت بہت پارٹیسن ہو گیا، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان بہت زیادہ تقسیم ہے، اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک سے نظام چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت کوئی ریفارمز نہیں ہو رہی، چاہے وہ صحت کے نظام کے لیے ہوں یا کم از کم اجرت پر۔ مواخذہ میری نظر میں چھوٹی چیز ہے، اور بہت مسائل ہیں حل کرنے کو جو نہیں ہو رہے، کیونکہ دونوں جماعتیں کسی بھی بات پر متفق نہیں ہو پاتی۔ صدر ٹرمپ کو بری تو کر دیا گیا، مگر بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل فیصلہ تو نومبر میں ہوگا جب امریکی ووٹرز اپنا فیصلہ سنانے کے لیے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور عالمی برادری اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر عادل نجم۔ پروفیسر عادل، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ دنیا میں جمہوری آزادیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سب سے آگے رہا، کیا میسج گیا ہے ساری کارروائی سے، خاص طور پر ان ممالک کو جہاں آمریت یا جمہوری اقدار کمزور ہیں؟
میرے خیال میں صرف اس کارروائی سے نہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے اور خصوصاً پچھلی الیکشن سے اور اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کے رویے ہیں کئی ان سے یقیناً ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ جمہوریت ہے کیا اور امریکی جمہوریت ہی کیا معیار ہے. اور سچی بات یہ صرف یہ ان سالوں کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے سوال یہ نہیں اٹھ رہا کہ جمہوریت غلط ہے، لیکن جمہوریت آج کے جو تقاضے ہیں، تکنیکی تقاضے، عوام کی آواز کے تقاضے، ان سے کس حد تک منسلک ہے، ہاؤ ریلیونٹ اور ہاؤ ریلیٹڈ اٹ از ٹو دا فیکٹس آن دا ریالٹیز آن دا گراؤنڈ. تو وہ سوال اٹھا اور یقیناً امریکہ میں اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر بھی اٹھ رہا ہے اور امریکہ سے باہر بھی اٹھ رہا ہے. اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا، اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ جمہوریت غلط ہے، کوئی اور نظام لیا. سوال یہ ہے کہ از اٹ فٹ فار ٹوڈیز پرپز. تو ہم عالمی برادری کی بات کریں گے کہ وہاں پر جو جمہوری اقدار آپ کے کہنے کے مطابق ان کو بھی دھچکا پہنچا ہے. یہ بتائیں کہ متعدد پولز کے مطابق صدر کے مواخذے کا ان کی مقبولیت پر بظاہر کوئی اثر نظر نہیں آتا. صدر ٹرمپ کی بیس ان کے امریکہ فرسٹ کے نعرے سے سب سے زیادہ متاثر ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے خود بھی بات کی، انڈیا ہو یا برطانیہ ہو، دنیا میں نیشنلسٹ سیاسی نظریات کو مقبولیت مل رہی ہے. یہ بتائیں کہ اس میں امریکہ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو سوال ہے کہ جو ابھی کارروائی ہوئی سینٹ میں اس میں کوئی ایسا سرپرائز کوئی نہیں تھا اور ان اے وے نہ جیتا کوئی نہ ہارا کوئی، دونوں کی کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی اور یہ الیکشن کے لیے کی گئی اور الیکشن کا ہی حصہ ہوگا. ایک بڑی جو عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کارروائی بھی ہوئی، اس میں بہت سی باتیں بھی آئیں، اس کے دوران بھی کئی کرائسس آئے، لیکن جو صدر ٹرمپ کا حامی تھا وہ اتنا ہی حامی رہا، جو مخالف تھا وہ اتنا ہی مخالف رہا، بلکہ دونوں جو تھے، جو حامی تھا وہ اور حامی ہو گیا، جو مخالف تھا وہ اور مخالف ہو گیا. تو میرے خیال میں اس کارروائی نے جیت کسی کو نہیں دی، نعرہ دونوں کو دے دیا. اگر ڈیموکریٹس یہ نہ کرتے تو نہ کرنا ان کے خلاف جاتا، لیکن کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو ان کے جو حامی ہیں ان میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور یہ وہ جو آپ کے مہمان بھی بات کر رہے تھے پچھلے کلپ میں کہ جو ڈیوائیڈڈ امریکہ ہے یہ اس کی نشانی ہے. اور دنیا بھر میں ہم یہ ڈیوائیڈڈ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، ناٹ اونلی ڈیوائیڈڈ بٹ ایکسٹریملی ڈیوائیڈڈ. پروفیسر عادل، یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ ان کے اقدامات کے باعث اب دنیا میں امریکہ کا غلط تاثر جو ہے وہ ختم ہوا ہے. دوسری جانب وہ مختلف محاذوں سے امریکہ کو پیچھے بھی ہٹانا چاہتے ہیں. کیا امریکہ دنیا کے اہم ایشوز سے خود کو الگ کر کر بھی اپنی عالمی حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں رکھ سکتا اور میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے اپنی اوپینین دی ہے، لیکن ہر اوپینین پول سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو ایک ایمیننس ہے، جو مورل ایمیننس ہے، اس پہ دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ اقتصادی طور پہ دنیا جو ہے وہ ایک تغیر کا شکار ہے، خصوصاً یہ کہ ایک چائنا کی جو اکنامک رائز ہے اس کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ یہ جو جنگیں جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، دنیا بھی تنگ آئی ہوئی ہے. اور تیسرا سب سے اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ظاہر پھر سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی جو ایک طاقت یا اس کی جو پوزیشن تھی اس میں اس کی مورل ایمیننس کا بڑا ہاتھ تھا. مورل ایمیننس مطلب یہ ہے کہ دنیا کہتی تھی کہ یار موضوع ٹھیک ہے، ہمارے اگر اختلاف بھی ہے تو دے ول ٹیک دا رائٹ اسٹینڈ، کہ وہ درست سٹینڈ لیں گے. اور اس پہ جو ہے سوال آ رہے ہیں. اور یقیناً اس وقت امریکہ کی جو ساخت ہے تمام ماہرین کی نظر میں وہ نہیں رہی جو تھی، اور یہ اس کی ایک ہسٹوریکل کاسٹ ہوگی. پروفیسر عادل نجم، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں نے جمعرات کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. اس سے قبل دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر. آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. حجرہ، جہاں پر پشتون معاشرے کی تہذیب اور ثقافت پروان چڑھتی ہے، پشتون معاشرے میں اسے ترسگاہ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن شہری زندگی اور سوشل میڈیا نے اسے معدومیت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. پشتون ثقافت کے ماہرین معاشرے سے غائب ہوتی حجرے کی روایت کو خطرناک سمجھتے ہیں. ان کے مطابق اس سے معاشرے میں شدت پسند نظریات پروان چڑھ سکتے ہیں. وہ کیسے، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پشاور سے عمر فاروق اپنی اس رپورٹ میں.
हुजरा, जहां कबीले और इलाके के मसाइल पर बातचीत, शादी ब्याह की तकरीबात, गाना बजाना और दीनी मसाइल पर बहस हुआ करती थी। कभी पश्तून माशरे में एक दरसगाह की हैसियत रखता था जहां हर उम्र और तबके के लोग आते थे और माशरती आदाब सीखते थे। आज हुजरे की रिवायत खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में सिमट कर रह गई है। गांव की सतह पे होता था पहले, अब लोगों ने छोटे छोटे बैठक बना के अपने मेहमान खाने बना के वो हुजरे कल्चर जो है ना वो ख़राब कर दिया। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है ना वो हुजरा जो है ना वो कल्चर ख़राब हुआ है। आमतौर पर हुजरे कबीले की सतह पर होते हैं जहां कबीले का सरबरा मलक कहलाता है और उसी के पास फैसले का इख्तियार होता है। लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक हुजरे की मादूमियत के साथ इसकी सियासी मामलात पर गिरफ्त कमजोर होने से इन मामलात पर मुल्ला और मस्जिद का अमल दखल बढ़ा। ताहम पेशावर यूनिवर्सिटी में पीस एंड कन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हुसैन शहीद सहरवर्दी कहते हैं कि हुजरा और मस्जिद दोनों की अमलदारी कमजोर हुई, जिसमें बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी है। बुनियादी तौर पर जिस दिन से सोशल मीडिया ने सर उठाया है उस दिन से वो तमाम माशरती रवाबित टूटना शुरू हुए जिसमें कि हम एक दूसरे की खैर खबर लेते रहते थे। पुश्तो जुबान के शायर और प्रोफेसर अबासीन यूसुफजी समझते हैं कि जिन इलाकों में हुजरा कल्चर मजबूत था वहाँ इंतहा पसंद सोच को परवान चढ़ने में मुश्किलात पेश आई। इलाके बच गए हैं जैसे बुनेर, दीर और ये इलाके उस आग के दरमियान थे, लेकिन उन्होंने हुजरे की कल्चर की वजह से अपने आप को बचा लिया। पेशावर यूनिवर्सिटी के पुश्तो अदब में हुजरे को एक अजायब घर की शक्ल में जिंदा रखने की कोशिश की गई है ताकि आने वाली नस्लों को इनकी सकाफत और रिवायत के बारे में बताया जा सके। इसी तरह सकाफती अक़दार के लिए म्यूजियम की जब तामीर की जाती है तो एक किस्म का क्लिक देना है बच्चों को जो भी आते हैं कि ये हमारी अक़दार थे, ये हमारी रिवाज थे, ये हमारी रवायात थे, ये हमारी तारीख है, इससे जुड़ के तसलसल के साथ आगे चलना है। सोशल मीडिया के दौर में हुजरे की रिवायत शहरों से चाहे खत्म हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में अब भी बहुत से अहम फैसले हुजरों में किए जाते हैं। अब देखना यह है कि बदलते वक्त के साथ हुजरा क्या एक नए अंदाज में परवान चढ़ सकेगा या नहीं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। चीन के सूबा होबी में नोवल कोरोना वायरस से एक ही दिन में मजीद 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद इस वायरस से मरने वालों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई है। चीन में सिर्फ एक रोज के दौरान कोरोना वायरस के 29,000 नए केसेस सामने आए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 फरवरी को मुल्क भर में इन केसेस की मजमूई तादाद 28,018 हो जाएगी। खबरसां इदारे रोटर्स के मुताबिक चीन के अलावा अब तक 31 ममालिक में कोरोना वायरस से 250 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर शहर वुहान समेत चीन के मजीद शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है। अब तक चीन के अलावा फिलिपाइन और हांगकांग में भी 2 अफराद के हलाक होने की खबरें आई हैं। इन दोनों अफराद ने वुहान का हाल ही में दौरा किया था। अमेरिका में वुहान से मजीद 350 अमेरिकी शहरियों को चीन से निकालकर कैलिफोर्निया के 2 फौजी अड्डों पर वाक़े कर्टिन क्रूज में रखा गया है। इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत ने उन गैर अमेरिकी शहरियों के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है जो गुज़िश्ता 14 रोज के दौरान चीन का सफर कर चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के पेश नज़र अमेरिकी हुकूमत ने हाल ही में ये इक़दाम लिए हैं। अमेरिका में खौफ के बायस कई अवामी मकामात और एयरपोर्ट्स पर लोगों को फेस मास्क पहने देखा जा सकता है। हम आपको लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ले चलते हैं, जहां के गैर मुल्की तलबा में 13% का ताल्लुक चीन से है। जनूबी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जैक वांग चीन में सर्दियों की छुट्टियां गुजारकर 1 माह कबल वापस अमेरिका आए हैं। अगर उन्होंने मजीद इंतजार किया होता तो हो सकता है कि वो कोरोना वायरस के बाद लगने वाली सफरी पाबंदी की वजह से वापस ना आ पाते। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम कई चीनी तलबा सफरी पाबंदी से परेशान हैं और सोचते हैं कि उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में चीन जाना चाहिए या नहीं। मेरे आसपास के बहुत से तलबा और दोस्तों ने अभी तक अपना टिकट भी बुक नहीं कराया क्योंकि वो मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार हैं। सफरी पाबंदी का ऐलान आलमी इदारे सेहत की जानिब से उस तजवीज़ के बाद किया गया जिसमें कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी सफर पर गैर जरूरी पाबंदियां आयद किए बगैर वायरस को फैलने और मुल्क में दाखिल होने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैदर विपफली का कहना है कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल गैर मामूली और जारहाना है।
It seems that individual nation states ऐसा लगता है कि चंद ममालिक ने आलमी इदारा सेहत को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का फैसला किया है और कई मामलात में इदारे की तजावीज़ को गैर अहम समझते हुए इंतहाई इक़दामात उठाने का फैसला किया है, जिससे दुनिया भर में खौफ में मजीद इजाफा हो रहा है। चीन पर मसले के सियासी नताइज बरामद हो सकते हैं क्योंकि अमरीकी इंतजामिया दूसरी वजूहात की बिना पर चीन को तनहा या कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। इससे चीन पर मुआशी असरात होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सफरी पाबंदी एक अच्छा इकदाम है। इनमें चीन से ताल्लुक रखने वाले USC के तालिब इल्म लियो यांग भी शामिल हैं। वायरस को अमेरिका से दूर रखने के हवाले से ये एक अच्छा इकदाम है। अगरचे सफरी पाबंदी यांग के लिए तसल्ली का बाइस है, वही दूसरे तलबा बीमारी के खतरे के पेश नजर मास्क पहनने लगे हैं। मुझे लगता है कि लोग अभी भी फिक्रमंद हैं, खुसूसन बैनुल अक़वामी चीनी तलबा। लिहाजा जब आप कैंपस में दाखिल होंगे तो आप इतने अमरीकियों को मास्क पहने हुए नहीं देखेंगे जितना कि चीन से ताल्लुक रखने वाले तलबा को। हैदर विफली कहती हैं कि ये गैर मुल्कियों के खिलाफ नफरत का सबब बन सकता है। इस वबा के कई सकाफती पहलू हैं जो आग को ईंधन फराहम कर रहे हैं, जिनमें से एक यकीनी तौर पर चेहरे पर मास्क पहनना है, जो रवायती तौर पर कई एशियाई ममालिक में पहना जाता है, जबकि शिमाली अमेरिका या यूरोप में इस पर अमल किया जाता। अभी तक सार्स के बारे में कुछ यादें ताज़ा हैं कि वो कितना जानलेवा था। लिहाजा नोवेल कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए फेस मास्क पहनना अच्छा फैसला है, खास तौर पर जब आप क्लास में हो और लोगों से बात कर रहे हो। अगरचे एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग खुद को बीमारी से बचाने के लिए आम तौर पर चेहरे पर मास्क पहनते हैं, वहीं मगरबी ममालिक में सूरत हाल इसके बरक्स है। बीमारियों के कंट्रोल के लिए अमरीकी इदारा आम लोगों को मास्क पहनने की हिदायत नहीं करता। ये मशवरा उन लोगों के लिए है जो नोवेल कोरोना वायरस से मुतासर हैं। यांग इस वबा के फैलने के खतरे से परेशान है। अगर मैं चीन में होता तो इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि वहाँ जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है और वाकयात होते रहते हैं। हो सकता है कि आपको भी वायरस हो जाए। मेरे ख्याल में ये कोई जानलेवा वायरस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुशकिस्मत हूँ कि मैं अमेरिका में हूँ। ये वायरस मुझे नहीं लग सकता। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज्यादातर जो लोग अब तक नोवेल कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं वो ठीक हो जाते हैं। एलिज़ाबेथ ली के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। जहां 4 फरवरी को कैंसर का आलमी दिन मनाया गया, वहीं माहिरीन सेहत पान खाने के खतरे से खबरदार कर रहे हैं। बहुत से एशियाई ममालिक में ये खतरनाक आदत बहुत मकबूल है। इनमें से एक म्यांमार भी शामिल है, जहां आधे से ज्यादा मर्द पान खाते हैं। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। पूरे म्यांमार में सड़क के किनारे स्टैंड पर पान बेचने वाले आसानी से मिल जाते हैं। इस आदत की निशानियां दांतों पर सुर्ख धब्बों के साथ साथ गलियों और फुटपाथों पर भी सुर्ख दागों की शक्ल में नजर आती हैं। पान खाने के बाद मेरा मुंह बेहतर महसूस होता है और मेरे दिमाग को सुकून महसूस होता है। मेरे सांस लेने से बदबू आती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुंह की बू बेहतर हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदादोशुमार के मुताबिक म्यांमार में तकरीबन 25% खवातीन और 60% से ज्यादा मर्द पान खाते हैं। आंथुरा 30 साल के हैं और वो 8 सालों से पान खा रहे हैं। ये मुझे नींद से जगाए रखता है और काम के दौरान बोर होने से बचाता है। पान, जैसा कि ज्यादातर पाकिस्तानी जानते हैं, पान के पत्ते पर चूना लगाकर और इसमें छालियां रखकर बनाया जाता है। म्यांमार में आमतौर पर इसमें तंबाकू को भी मिलाया जाता है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि तंबाकू में निकोटीन और छालिया में रिकोलिन अच्छा इम्तजाज नहीं। ये दोनों केमिकल नशे का आदी करने वाले हैं, लिहाजा दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल करने से लोग इसे ज्यादा से ज्यादा खाना चाहते हैं। डॉक्टर थैन सेन म्यांमार में हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप पीपल्स हेल्थ फाउंडेशन के सरबराह हैं, जो आवाम को इन खतरात से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मुहिम में टेलीविजन पर चलने वाले इश्तहार भी शामिल हैं, जिनमें पान खाने से बीमार होने वाले लोगों को दिखाया जाता है। छालिया चबाना मुंह के कैंसर की पहली बड़ी वजह है, और फिर जुबान का कैंसर, नरखरे का कैंसर, फिर फेफड़ों का कैंसर और फिर पेट का कैंसर। WHO के मुताबिक जो शख्स तवील अरसे तक बाकायदगी से पान में तंबाकू मिलाकर खाता है, उसे जुबान के कैंसर का खतरा उस शख्स से 7 गुना ज्यादा होता है जो पान नहीं खाता। लेकिन कुछ लोग खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मुंह का कैंसर उस वक्त होता है अगर आप अपने मुंह में छालियां छोड़कर रात भर सो जाएं।
लेकिन डॉक्टर थेनसेन का कहना है कि पान खाने वाले तमाम अफराद इस खतरे का शिकार हैं, खासतौर पर वो जो इसे 1 दिहाई से ज्यादा अरसे से चबा रहे हैं, और अक्सर उन्हें तब पता चलता है कि उन्हें कैंसर है जब इलाज होने में देर हो चुकी होती है। कैंसर आहिस्ता आहिस्ता होता है और लोगों को पता नहीं चलता, और जब वो मौत के करीब होते हैं तो अक्सर इन्हें तब पता चलता है। लेकिन म्यांमार में तमाम अलामतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पान खाना मुल्क की सबसे पसंदीदा आदत है। डेव गुरनेबाम के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आप एक 13 फीट लंबे मगरमच्छ की जान बचाने के लिए उसकी गर्दन में फंसे टायर को निकालने की जुर्रत कर सकते हैं? यह आसान काम नहीं। यही वजह है कि इंडोनेशिया में हुकाम ने एक मगरमच्छ की गर्दन के गिर्द फंसे मोटरसाइकिल टायर को निकालने के मुकाबले में नकद इनाम का ऐलान वापस ले लिया है। सूबाई दारुल हुकूमत पालो में हुकाम ने कहा है कि मगरमच्छ की मदद के लिए रखे गए इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कोई शहरी आगे नहीं बढ़ा। गले में टायर का हार पहने इस मगरमच्छ को सबसे पहले 2016 में देखा गया था। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के मकामी इदारे ने टायर से मगरमच्छ को बचाने के लिए नुकसान के पेश नज़र मुकाबला गुज़िश्ता माह शुरू किया था। इदारे के मुताबिक इनाम की रकम इदारे के सरबराह की जेब से आनी थी। अहदेदारों ने बताया कि वज़ारत माहौलियात की एक टीम मगरमच्छ की मदद के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है। कॉमिक्स बुक्स पढ़ने वालों को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, मगर हकीकत यह है कि कॉमिक बुक्स की दुनिया में अजारादारी मर्द मुसन्निफों और इलस्ट्रेटर्स की है। इसे बदलने के लिए मैदान में उतरने वाली कुछ खवातीन से आइए मिलते हैं जो चाहती हैं कि कॉमिक्स की दुनिया में भी हकीकी दुनिया की तरह औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करें। कॉमिक बुक की सनत में शायकीन, किरदारों और फनकारों समेत मर्दों का मुकम्मल गलबा रहा है। अगरचे सुपर हीरो कॉमिक्स के दौर से तस्वीरी खाके बनाने और लिखने वाली खवातीन भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, ताहम इनकी नुमाइंदगी अब भी बहुत कम है। अलीना चाओ चीनी और इंडोनेशियाई निजात आर्टिस्ट हैं जो बच्चों की कहानियों के लिए खाके तैयार करती हैं। उनका कहना है कि अब इस सनत में खवातीन की नुमाइंदगी में बेहतरी आई है। अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और अब ज़्यादा खवातीन इस सनत में मौजूद हैं, लेकिन मैं अब महसूस करती हूँ कि अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कम से कम एनिमेशन में खवातीन को अब भी एक ही तरह के काम के लिए मर्दों के मुकाबले में कम उजरत मिलती है। ताहम उजरत में फ़र्क ही वाहिद मसला नहीं है। ज्यादा इम्कान ये है कि खवातीन इलस्ट्रेटर्स को औरतों के किरदार ही दिए जाएंगे। मैंने ये कम ही देखा है कि खवातीन कॉमिक आर्टिस्ट को मर्दों के किरदार बनाने के लिए दिए गए हों। कॉमिक लिखने वाली एमी चू भी ये महसूस करती हैं कि तफरीही और नशरियाती सनत में कुछ खामियां मौजूद हैं। बहरहाल चूँकि हम खवातीन हैं, हमें इजाफी मदद फराहम की जाती है या कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे इस कारोबार में अब भी खवातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अलीथा मार्टिनेज मार्वल और डीसी कॉमिक्स में आने वाली सबसे पहली सियाफाम आर्टिस्ट में से एक है। अगरचे वो 20 साल से सनत में काम कर रही हैं, लोग अक्सर उनके हुनर को शक की निगाह से देखते हैं। मैं वैसी नहीं दिखती जैसे लोग एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं। मुझे अक्सर इस बारे में होने वाली बातचीत से अलग रखा जाता है और कॉमिक्स में मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती। यूँ मेरे लिए अपने आइडियाज़ को पेश करना मुश्किल हो जाता है। मुझे खुशी है कि अब इस शोबे में आने वाली ज्यादातर लड़कियों को वैसी सूरत हाल का सामना नहीं होगा जिसका मुझे सामना रहा, यानी नहीं सुनना, और वो अब खुद अपनी चीजें पेश करने के काबिल हो गई हैं जिन्हें लोग पसंद करने लगे हैं। जैसे जैसे कॉमिक बुक की सनत आगे बढ़ रही है, अलीना चाओ को उम्मीद है कि खवातीन आर्टिस्ट की नुमाइंदगी बेहतर होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब खवातीन आर्टिस्ट की पहचान बेहतर होती जाएगी। मैं तवक्को रखती हूँ कि खवातीन को अब भी मर्दों जैसी इज्जत मिलेगी ताकि वो मजीद मेहनत से काम कर सकें। मेरे ख्याल में ये अहम है कि खवातीन आर्टिस्ट्स की ज़्यादा पजीराई हो और कम्युनिटी उन्हें ताउन फराहम करे ताकि वो भी इस शोबे में मर्दों की तरह कामयाब हों। दानिया इमाम के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, दीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।